गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन डेस्कटॉप डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं। हाउ वी कैन ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। अपना उद्देश्य यही है कि कैसे अपन सेंडर से रिसीवर के पास डेटा को ट्रांसफर करें। इसमें जो अपन अभी पढ़ रहे थे वो था नेटवर्क मीडियम। There are two types of medium exist in data communication. We strongly pronounce that media. अपन उसको क्या बोलते हैं? मीडिया कहते हैं। अब ये मीडिया दो तरीके के हैं। We can classify media into guided media and unguided media. Guided means if there exists a physical connection between sender and receiver, like a wire or any data cable, bus, etc., then that is known as guided media. If there exists a virtual connection between sender and receiver, there exists not any physical connection between sender and receiver, then that is known as unguided media, like microwaves, like satellite, like radio transmission, etc. These are examples of unguided media. In previous videos, we already discussed guided media. हम पीछे जो है वो इन चीज को पढ़ चुके हैं पूरा। गाइडेड मीडिया में अपन ने क्या क्या पढ़ा है? गाइडेड मीडिया मीन्स ट्विस्टेड पेयर केबल्स, कोएक्शियल केबल्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स। These are three basic guided medias which used in data communication during data transmission. And today we will discuss unguided media. Here we will start from unguided media or unguided networks. Unguided media. First of all, we define unguided media. कि क्या होता है? It is a communication channel like other media. It is also a communication channel which used to communicate data from sender to receiver or from one node to other node. And the most important thing about guided media is it provides virtual connection. It provides virtual connection. There is no physical connection. Like wire, cable, bus, etc. So, if we use any communication channel which has virtual connection from sender to receiver, then that is defined as unguided media, in strongly termed as data communication. Today we will discuss how many types of guided and unguided media we can use and their characteristics, their features, and what are they associated during data communication. So, an unguided media using spectrum, or we can say frequency band, which used for data transmission. It used a spectrum band. First of all, we define that particular spectrum band. Unguided media में जो डेटा ट्रैवल होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो डेटा जाता है उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बीम होता है, एक पर्टिकुलर अपन यूं कह सकते हैं फ्रीक्वेंसीज का एक स्पेक्ट्रम होता है जो यूज किया जाता है, जो अपने को ये बताता है कि किस टाइप के मीडिया का यूज किस फ्रीक्वेंसी लेवल पर होता है या किस टाइप का ट्रांसमिशन कौन सा फ्रीक्वेंसी लेवल यूज करता है। सो वी विल डिफाइन दैट पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम बैंड और फ्रीक्वेंसी बैंड by following diagram. Here we declare that particular frequency band by a pie chart.
The first quadrant is power voice, human voice we can say. सबसे जो छोटा फ्रीक्वेंसी बैंड होता है या सबसे जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी बैंड है वो वॉइस जो अपन आवाज जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं पावर वॉइस. एंड दैट फ्रीक्वेंसी इज फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 3 हर्ट्ज. We can define frequency band from 0 hertz to 3 kilohertz. Okay. Next one is radio waves. Second one is for radio waves. It is reserved for radio waves. Third one is infrared waves. Fourth one is line of sight. We can define it by X-rays, gamma rays, etc. And last one is line of sight. So we can define an unguided media by following frequency bands. So these are 5 basic frequency bands we can use or we can say we can describe during data communication. ये अपने 5 ऐसे अलग-अलग लेवल्स हैं जिनके अंदर अपन फ्रीक्वेंसी बैंड को स्पेसिफाई करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर अनगाइडेड मीडिया. इन सब का एक फ्रीक्वेंसी लेवल होता है कि जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन की जो वॉइस थी वो अपनी 0 हर्ट्ज मींस वो अपने को सुनाई नहीं देती है, बहुत लो फ्रीक्वेंसी लेवल. बट फ्रॉम 0 हर्ट्ज टू 3 किलोहर्ट्ज यहां तक है. 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. Zero hertz to 3 kilohertz for power voice, 3 kilohertz to 300 gigahertz, which is used by radio wave transmission. That is mostly used communication media, unguided media in today's era. आज के टाइम में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है. Infrared waves, which mostly we can use as Bluetooth, as remote, etc., which has 300 gigahertz to 400 terahertz. 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज, 400 टेराहर्ट्ज से 750 टेराहर्ट्ज. इट इज फॉर प्रिजर्व फॉर एक्स रेज, गामा रेज, वाई रेज, एक्सेट्रा. एंड देन आफ्टर ऑल फ्रीक्वेंसी लेवल डिफाइंड एज लाइन ऑफ साइट. तो अपन ने ये जो डायग्राम लिखा है इसके अनुसार क्या है कि अपने पास ये जो 5 अलग-अलग फ्रीक्वेंसी बैंड लेवल हैं उनमें ह्यूमन जो वॉइस है या पावर जो वॉइस है, कोई भी आवाज जो अपन सुनते हैं उसका फ्रीक्वेंसी बैंड मिनिमम 0 हर्ट्ज से 3 हर्ट्ज के बीच में हो सकता है. रेडियो वेव जो ट्रांसमिशन होता है, अलग-अलग जो रेडियो बैंड्स होते हैं उसके लिए 3 किलोहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज. ऐसे ही इंफ्रारेड वेव कम्युनिकेशन के लिए 300 गीगाहर्ट्ज से 400 टेराहर्ट्ज के बीच में. वही सेम काम एक्स रे, वाई रेज, गामा रेज इन सब के लिए 400 टेराहर्ट्ज से 750 टेराहर्ट्ज. एंड लास्ट लाइन ऑफ साइट्स के लिए, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं बियॉन्ड लाइन्स. तो ये अपना एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड है which is used for unguided media. Now we further discuss its generic type of unguided media. ये पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे कि जो अनगाइडेड मीडिया होता है, अनगाइडेड मीडिया का जो पैटर्न है उसके अंदर अपन किस तरीके से किस किस टाइप के मीडिया का यूज करते हैं. वी कैन क्लासिफाई, वी कैन डिफाइन और वी कैन से देयर आर
Valuable example of unguided media are three basics. First, radio waves. Second, microwave transmission. And last one is satellite transmission. Here we can classify an unguided media into three basic forms. First one is radio wave transmission, second one is microwave transmission, and last one is satellite transmission. इन तीन के द्वारा अपन डिफाइन करते हैं अनगाइडेड मीडिया। The simplest and most cheapest form is radio wave transmission. सबसे साधारण और सबसे cheapest अपन बोल सकते हैं वो अपने क्या है, रेडियो वेव ट्रांसमिशन। If we categorize the cost factor, then it will increase from radio wave transmission to microwave transmission, thereafter satellite transmission. इस तरीके से ये आगे बढ़ता रहता है, इस तरीके से ये आगे जाता रहता है। कौन सा? जो अपना अनगाइडेड मीडिया, रेडियो वेव ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, इस कैटेगरी की तरफ फॉलो करता है। इसको अपन बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया में कॉस्ट फैक्टर। और जो इसका कॉम्प्लेक्सिटी फैक्टर है, जटिलता का जो है, इसको अपन बोल सकते हैं, वो भी फैक्टर इसी क्रम में अंदर रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी आल्सो डिफाइंड फ्रॉम रेडियो वेव ट्रांसमिशन टू माइक्रोवेव ट्रांसमिशन टू सैटेलाइट ट्रांसमिशन, इसी क्रम के अंदर बढ़ती रहती है या इसी क्रम के अंदर जाती रहती है। तो यहाँ जो चीज अपन ने डिफाइन की है, जो चीज अपन ने परिभाषित की है, उस चीज को अपन फॉलो करेंगे। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे रेडियो वेव ट्रांसमिशन से। व्हाट इज रेडियो वेव ट्रांसमिशन? What is radio wave transmission? क्या होता है radio wave transmission? We can simply define radio wave transmission by a particular band width or a particular band which has a particular frequency level for data communication. अपन radio wave transmission को कैसे परिभाषित करेंगे? एक particular bandwidth अपने को मिलता है, एक particular band अपने को मिलता है, या यूं कहें कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी के बीच का एक अपने को स्पेक्ट्रम मिलता है। किस पर्पस के लिए? फॉर डेटा कम्युनिकेशन, डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए। अब वो जो डेटा कम्युनिकेशन होता है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है उसको अपन देखते हैं। सबसे पहली चीज, इसके लिए अपन एक डायग्राम बनाते हैं। वी कैन क्लासिफाइड different frequency band for radio wave transmission. रेडियो वेव ट्रांसमिशन को अपन अलग अलग बैंड के द्वारा या अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड के द्वारा अलग अलग प्रकार से क्लासिफाइड करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं। अब वो टुकड़े कैसे हैं ये समझते हैं। मैं यहाँ पर फिर से वही पाई चार्ट बना रहा हूँ। ये पर्टिकुलर पाई चार्ट अपने को बताएगा कि कैसे कैसे रेडियो वेव ट्रांसमिशन के बैंड होते हैं। अपन ने ये चीज पढ़ी कि रेडियो वेव ट्रांसमिशन 3 किलोहर्ट्ज से शुरू होता है, 3 किलोहर्ट्ज से शुरू होता है और 300 गीगाहर्ट्ज के बीच के अंदर ट्रैक करता है, 300 गीगाहर्ट्ज तक जाता है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी लेवल्स क्या क्या है? आपको डिफाइन करता हूं। वेरी लो फ्रीक्वेंसी, यहां से शुरुआत, लो फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी,
high frequency, very high frequency. Ultra high frequency, super high frequency, and last one is extremely high frequency. ये जो 8 अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड हैं ये यूज किए जाते हैं। सभी फ्रीक्वेंसी बैंड के अंदर इक्वल पार्टीशन होता है, इक्वल बैंडविड्थ मिलता है, या अपन यूं कहें कि इक्वल साइज मिलता है। वो साइज कहां से शुरू होगा? फ्रॉम 3 हर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। अब अपन देखो डिफाइन करते हैं, इसको याद करना बिल्कुल सिंपल है। वी कैन मेमोराइज दिस पर्टिकुलर रेडियो वेव ट्रांसमिशन बैंड बाय सम इनिशियल और सम वी कैन से सम very easy steps. 3 hertz to 30 kilohertz. For VLF, very low frequency के लिए क्या होगा? 3 hertz से 30 kilohertz के बीच। 30 kilohertz से 300 kilohertz के बीच क्या होगा? लो फ्रीक्वेंसी। 300 kilohertz से 3 megahertz। 3 मेगाहर्ट्ज ये होगा मीडियम फ्रीक्वेंसी। 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज दैट इज फॉर हाई फ्रीक्वेंसी। 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज ये होगा वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज ये होगा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी, और 30 गीगाहर्ट्ज ये होगा सुपर हाई फ्रीक्वेंसी, एंड 30 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज इट इज फॉर एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी। यहां जो अपन ने बैंड बनाए हैं उसके अंदर क्या है, क्या क्या चीजें अपन ने असाइन की है? यहां F का मतलब है फ्रीक्वेंसी से सभी जगह, दैट इज वेरी लो फ्रीक्वेंसी, VLF, very low frequency we can classify. That is low frequency, that is medium frequency, that is high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency and extremely high frequency. तो यहाँ प्रत्येक के अंदर जो अपने को मिल रहा है, देखिए वो पार्टिकुलर वर्जन में किस प्रकार से मिल रहा है, एक इक्वल अपन बोल रहे हैं और आगे बढ़ते क्रम में चल रहा है। अपन यूं कह सकते हैं इट इंक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी बैंड in which order? In incremental order, ascending order we can define as mathematical. अब यहाँ पर ये जो बैंड है इनके अंदर डेटा कम्युनिकेशन किस प्रकार से होगा, या कौन सा मीडियम यूज होगा, माध्यम कौन सा यूज होगा? फर्स्ट टू, इट मींस दिस एंड दिस, दे पार्टिकुलरली यूज सरफेस, जमीन जो अपना होता है उसका यूज है। सेकेंड वन इज ट्रोनोस्टेट, क्षोभ मंडल जिसको अपन बोलते हैं। दीज टूल्स फॉर आइनोस्टेट, this is for line of sight, and last two for space. अब इसके इस डायग्राम के द्वारा अपन ने लगभग सारी चीजें क्लासिफाइड कर दी फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन, which means that radio wave transmission will start from very low frequency, then further it goes to low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency and extremely high frequency. अब अगर अपन इन 8 फ्रीक्वेंसी बैंड को अलग अलग डिफाइन करें तो वो किस प्रकार से होगा? सबसे पहले फर्स्ट वेरी लो फ्रीक्वेंसी। वेरी लो फ्रीक्वेंसी मींस इट इज लोएस्ट फॉर्म ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ रेडियो वेव ट्रांसमिशन। ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी बैंड का लेवल होता है।
जो कहां से कहां तक शुरू होता है 3 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज के बीच में। इसमें जो डेटा ट्रेवल करेगा उसका फ्रीक्वेंसी बैंड ये है, एंड दैट विल कवर और वी कैन से दैट विल कम्युनिकेट डेटा यूजिंग सरफेस मीडियम, मतलब जमीन का जो तल होता है वहां उसकी वेव्स कम्युनिकेट करें। नेक्स्ट वन इज लो फ्रीक्वेंसी। लो फ्रीक्वेंसी का मतलब 330 किलोहर्ट्ज टू 300 किलोहर्ट्ज, सेम लाइन। दैट आल्सो यूज सरफेस। जो लॉन्ग टाइम रेडियो है वो इन दोनों के एग्जांपल है। लंबी दूरी का जो रेडियो कम्युनिकेशन होता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी एंड वेरी लो फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट वन इज मीडियम फ्रीक्वेंसी, दैट इज जस्ट अपर फ्रीक्वेंसी लेवल which use 300 kilohertz to 3 megahertz frequency band। इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी बैंड जो यूज करता है, इट्स डेटा ट्रेवल इनटू ट्रांसफेयर, क्षोभ मंडल में इसका डेटा ट्रेवल करता है। और इसका जो कॉमनली एग्जांपल है वो होता है मरीन टाइम या फिर एंटी मेरिडियम रेडियोस जिनको अपन यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज हाई फ्रीक्वेंसी, 3 मेगाहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। आयनोस्फीयर, आयन मंडल जो होता है दैट यूज फॉर दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी बैंड, इट मींस हाई फ्रीक्वेंसी। इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज वॉकी टॉकीज। वॉकी टॉकीज में अपन जो डेटा ट्रांसफर करते हैं वो पर्टिकुलरली हाई फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी मींस 30 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज। ये क्या डिफाइन करता है या ये डेटा कहां कम्युनिकेट करता है? इट आल्सो यूज आयनोस्फीयर, आयन मंडल का यूज करता है डेटा ट्रैवलिंग के लिए। आपने शायद देखा भी हो यूएचएफ एक बैंड होता है टीवी के अंदर, यूएचएफ एंड वीएचएफ ये दोनों बैंड होते हैं डेटा कम्युनिकेशन के लिए। तो टीवी इसका एक एग्जांपल है, वॉकी टॉकीज में भी इसका यूज किया जाता है, टेलीग्राफ जो होता है वो भी इसका एग्जांपल है। यूएचएफ है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज टू 3 गीगाहर्ट्ज। इसका जो पर्टिकुलर यूज होता है वो किस पर्पस के लिए होता है? इट इज यूज फॉर पर्टिकुलरली फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस। यहां से वायरलेस कम्युनिकेशंस की शुरुआत होती है। टीवी के अंदर भी इसका यूज होता है, जैसे डिश एंटीना है, डिश टीवी वगैरह है, वो यूएचएफ बैंड यूज करते हैं। या कोई भी सेलुलर टेक्नोलॉजी जो है जैसे मोबाइल्स है उनका इनिशियलाइजेशन यहां से होता है, शुरुआत यहां से होती है, यहां से अपन डेटा कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सुपर हाई फ्रीक्वेंसी बैंड, इट्स फ्रीक्वेंसी फ्रॉम 3 गीगाहर्ट्ज टू 30 गीगाहर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी बैंड का क्या होता है? 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहता है। इट यूज स्पेस फॉर डेटा ट्रैवलिंग। किस मीडियम का यूज करता है? ये स्पेस का यूज करता है, या स्पेस का यूज करते हुए डेटा को ट्रैवल किया जा सकता है। इट इज मोस्टली यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन like mobiles, like cellular telephony, etc. But as well as it used in radar, aeroplane communication, aeroplane traveling system, etc. इसके अलावा ये कहाँ यूज होता है? वायरलेस कम्युनिकेशन में तो यूज होता ही, साथ साथ में इसका अपन यूज कर सकते हैं एरोप्लेन्स के कंट्रोलिंग सिस्टम के अंदर, रडार के अंदर, इस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज EHF, extremely high frequency, which use 3 gigahertz to 300 gigahertz communication channel, जिसका यूज क्या होता है? 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज के बीच में रहता है। अब ये जो पर्टिकुलर चैनल है EHF, ये एक तरीके से रिजर्व फॉर्म है। इट कैन यूज और इट कैन ट्रेवल डेटा इन सेलुलर टेलीफोनी। इसका यूज अपन सेलुलर टेलीफोनी में भी कर सकते हैं, मतलब मोबाइल्स में या दूसरे किसी भी कॉन्सेप्ट में जिसके अंदर डेटा बिना कम्युनिकेशन के जाता हो या इस प्रकार से जाता हो। इसके अलावा इसका जो मेन यूज है दैट इज फॉर साइंटिफिक पर्पज। साइंटिफिक जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है जैसे सैटेलाइट्स, दैट इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ EHF।
सैटेलाइट्स के थ्रू जो डेटा कम्युनिकेशन होता है विच मोस्टली यूज EHF बैंड ड्यूरिंग डेटा कम्युनिकेशन, इस बैंड का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये 8 बैंड होते हैं। देयर एग्जिस्ट 8 बैंड्स फॉर रेडियो वेव ट्रांसमिशन। Each band has its particular frequency level and its particular data traveling surface like ionosphere, chromosphere, line of sight space, mean। तो इन सब का यूज करते हुए ये बनता है। अपन ने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो चीज पढ़ी है वो क्या है? सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि हाउ वी कैन डिफाइन अनगाइडेड, फिर उसके 3 एग्जांपल्स होते हैं। उन तीनों एग्जांपल्स के बारे में अपन ने पढ़ा। वो 3 एग्जांपल्स में से पहला एग्जांपल आज अपन ने डीपली स्टडी किया है। नेक्स्ट जो वीडियोज हैं उनके अंदर बाकी के जो दोनों एग्जांपल हैं, यानी कि माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट ट्रांसमिशन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। थैंक यू।